Good morning, dear friend. In today's video, I will discuss the concept of missing frequency in case of mod, and I will also explain the illustration having three missing frequencies. Missing frequencies in the case of mod. I will explain through the illustration. The statement is find out the missing frequency in the following distribution. In the following distribution, if mod is equal to 24 and number of families is equal to 100. So the statement is expenditure. Expenditure is given from 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50. And families are given 14. There is no frequency is given, that means this is a missing frequency. 27, there is also no given frequency, so 15. Now the solution will be expenditure that is 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. This is our expenditure given, and corresponding to the expenditure, number of families are given. That is, families are 14. This is a missing. I can put here X. And this is 27 already given. And this is again missing. I can take here Y. And this is 15. That means in the place of missing, I have put here X and Y. Now the question is, mod is already given. Mod is given 24 and number of families are 100. As number of families are 100, I will calculate here N, or I can also say sigma F. 14 plus 27 plus 15, that will be 56, plus X plus Y. That is N I have calculated, that is 56 plus X plus Y, and given in the statement number of families, that is 100. दोनों N के values को हमने equal कर लेना. So X plus Y is equal to 100 minus 56. X plus Y is equal to 44. This is the one equation. Now the mod is given. Mod is 24. 24, that is coming in this row. So I will put here line. Now the formula of mod is Z is equal to L plus F1 minus F0 over 2F1 minus F0 minus F2 into I. So I will take here as, यहाँ पर मैं इसको मान लेती हूँ F1. इससे पिछली वाली टर्म को हम लग लेते हैं F0 और इसको ले लेते हैं हम लोग F2. So Z is equal to, Z is already given, that is mod is 24. I am putting here 24 is equal to, lower limit is 20. And F1 is 27. F0 is X. 2 into 27. F0 is X or F2 is Y. I means gap between two values, that is, this is given, this is 10. That means I can put here lower limit is 20 and F1 is 27, F0 is X, F2 is Y or I is equal to 10. Now इसको सिंप्लीफाई करते तो 20 इधर आ गया, डेट मीन्स क्या आ गया, 4 इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स ओवर 54 एक्स प्लस वाई इंटू 10. 4 इक्वल टू 27 माइनस एक्स 54 एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन से ले लेनी. एक्स प्लस वाई इक्वल टू किसके इक्वल है, 44. डेट मीन्स यहाँ पर मैं पुट कर लूंगी 44, यहाँ पर लिख लूंगी फ्रॉम 1. तो इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ जाता है
4, that is 4 equal to 27 minus x over 10 into 10. 10 कटिंग कर दी तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है 23. That means x is 23. अब ये x की वैल्यू जब 23 हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, that means x की वैल्यू हम पुट करेंगे x is equal to 23 पुट इन 1, तो हमारे पास आ जाएगी 23 प्लस y is equal to 44. That means y is equal to 44 minus 23, y is equal to 21. तो this is the missing frequencies in the case of mod. Again, जब भी दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज दी होती है तब हमें एक तो मॉड की वैल्यू गिवन होती है, एक एन कैपिटल एन दी होती है, डेट मीन्स नंबर ऑफ फैमिली. तो सिंपली हमने क्या करा, एक इक्वेशन हमने बना ली एन वाली वैल्यू से और दूसरी हमने बना ली मॉड का फॉर्मूला लगा के. तो आई हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन आई विल एक्सप्लेन. दैट मीन्स अगेन here 3 missing frequency. How we have to calculate? That is example. In the following Bayes distribution, the median and mod are rupees. Median and mod are rupees 33.5 and rupees 34 respectively. But 3 class frequencies are missing. 3 class frequencies are missing. Find out the missing frequency. Given is Bayes is given rupees 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, and total is given. Then frequency is given. Frequency is 4, 16, question mark, that is missing frequency. This is again missing, this is again missing, that is 6, and 4, total is given 230. Then solution. Firstly, I will write out wage. Wage is given in rupees. That is 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, and 60 to 70. Then frequency is given. Frequency is given 4, 16, 20 to 30. This is missing. I am putting here x. Then again this is missing. I am putting here y. Again missing. That is I am putting here z. 6 and 4. Now I will calculate n. N is 14 plus 6, 20, 20 plus 26, and 26 plus 4, 30. That means x plus y plus z plus 30. This is the n. अब देखिए स्टेटमेंट में क्या गिवन है. एक तो हमें दे दिया मीडियन. मीडियन इज गिवन 33.5. देन मॉड इज गिवन 34. देन टोटल इज ऑल्सो गिवन. 3 मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो हमने 3 वैल्यूज निकालनी है. पहले n की वैल्यू, n मीन्स टोटल. टोटल इज गिवन x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 30. ये हमने कैलकुलेट करी और गिवन कितना 230. तो दोनों को इक्वल रख लेते हैं हम लोग. x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 30 इक्वल टू 230. तो x plus y plus z is equal to 200. This is equation number 1. Then now अगर मीडियन की बात करें तो मीडियन हमें कितना दिया हुआ है 33.5. तो 33.5 दिया हुआ है. तो यहाँ से हमें आइडिया हो गया कि मीडियन का फॉर्मूला हमारा होता है L प्लस n/2 माइनस CF ओवर F इंटू I.
तो इसका मीनिंग है हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना पड़ेगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर बना लेते हैं, वो कैसे बनेगी, 4 प्लस 16 दैट इज 20, 20 प्लस एक्स, देन 20 प्लस एक्स प्लस वाई, देन 20 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, देन 26 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, देन 30 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये हमारा बन गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम। और यहाँ पर मीडियन कितना दिया हुआ, मीडियन दिया 33.5, दैट मीन्स मीडियन की वैल्यू कहाँ पर लाई करेगी, 30 और 40 के बीच में, क्योंकि 33.5 इसी में आता है, तो हमने इसको अंडरलाइन कर लेना। तो इसका मतलब है लोअर लिमिट हमारी कितनी होगी, 30, और जो हमने CF लेनी होती है, CF हमने इससे प्रीसीडिंग आइटम, पहले वाली आइटम ले लेनी है, वो हो जाएगी 20 प्लस एक्स, एंड फ्रीक्वेंसी आपने वही रो वाल को लेना है y, एंड I इज द 10। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे। मीडियन हमें कितना दिया था, 33.5 इक्वल टू, लोअर लिमिट हमें कितनी दी हुई है, 30, देन n by 2, n is given, n is 230 by 2, इसका आंसर कितना आ गया, 115, दैट मीन्स यहाँ पर लगा लेंगे 115। CF कितनी आई हुई है, 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स ओवर फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास, y, I कितना है, 10। तो इसको सॉल्व करते हैं जब हम, तो 33.5 में से 30 इधर ले आए, तो दैट मीन्स 3.5 इक्वल टू 115। तो इसको ब्रैकेट को खोलेंगे, क्या बन जाएगा, 20 माइनस एक्स ओवर y इंटू 10, दैट मीन्स 3.5 इज इक्वल टू 115 में से 20 गए, तो ये हमारा आ गया 95 माइनस एक्स ओवर y इंटू 10। तो इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, ये वैल्यू आ जाएगी 35/10 लिख लेते हैं, दैट मीन्स नाउ ये आ गया 10 by y, 95 माइनस एक्स। अब इसको कटिंग करेंगे तो आई विल गेट 7y इज इक्वल टू 1900 माइनस 20x। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई 20x प्लस 7y इक्वल टू 1900। दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन यहां से बनाई थी टोटल से, सेकेंड इक्वेशन हमने कहां से बना ली, मीडियन से। अब थर्ड इक्वेशन जो हमारी बननी है वो कहां से बननी है, मॉड से बननी है। मॉड इज गिवन, मॉड इज ऑलरेडी गिवन 34। 34 देखिए किस में आता है, वो भी इसी वाले रो में आता है। तो मॉड का पहले फॉर्मूला लगाती हूं मैं, लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 ओवर 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू आई। तो लोअर लिमिट जो बन जाएगी वो 30 बन जाएगी, दैट मीन्स इस चीज में हमारा मॉड भी लाई करता है। तो हम लोग इसको ले लेते होते हैं f1, इसको ले लेते हैं f0, इसको ले लेते हैं हम लोग f2। तो इसका मीनिंग है आपके पास f1 की वैल्यू कितनी आ गई, y, f0 कितना आ गया, x, एंड f2 कितना आ गया, हमारे पास z आ गया, और I मीन्स गैप, दैट इज 10। सो मॉड कितना गिवन है, मॉड इज ऑलरेडी गिवन 34। 34 इज इक्वल टू, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, 30 प्लस f1 इज y माइनस x अपॉन 2 इंटू y, दैट मीन्स 2y माइनस f0, f0 कितनी है x, और f2 कितनी है z, I इज 10। ये आ गया 4 इज इक्वल टू 10y माइनस एक्स, देन 2y माइनस एक्स प्लस जेड। अब देखिए इससे इसको क्या करना, हमने हमारे पास ऑलरेडी जो इक्वेशन थी फ्रॉम वन से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे x प्लस जेड की। x प्लस जेड की वैल्यू आ जाएगी 200 माइनस वाई, यहां से हमने निकाल ली x प्लस जेड इज इक्वल टू 200 माइनस वाई, यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे 10y माइनस एक्स, दैट इज 2y, 200 माइनस वाई। तो इसको सॉल्व करते हैं जब, तो हमारे पास क्या आ जाता है, 4 इक्वल टू 10y माइनस एक्स
that is 3y minus 200. तो सिंप्लीफिकेशन करके हमारे पास इक्वेशन बन जाती है y इज इक्वल टू 400 माइनस 5x. ये हमारी इक्वेशन आ गई y की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ x. दैट मीन्स ये वैल्यू हमने कहाँ से निकाली है, ये सारी वैल्यू हमने निकाल ली है अपने एक मॉड की इक्वेशन से. अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू जो है, ये वाली y की वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर 2. पुट इन इक्वेशन नंबर 2. तो 20x प्लस y की जगह क्या लगा देंगे, 7y की जगह हमारा लग जाएगा 400 माइनस 5x इक्वल टू क्या है 1900. जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है 20x 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2800 दैट इज 35x इक्वल टू 1900. तो फिर हमारे पास आ गया दैट इज माइनस 15x इज इक्वल टू माइनस 900. कैलकुलेट करके x की वैल्यू आ गई हमारे पास 60. कटिंग करके x की वैल्यू क्या आ जाती है 60. अब ये x की वैल्यू हमने कहाँ पुट कर देनी है, इस इक्वेशन को चाहे आप स्टार लगा लो. दैट मीन्स x इज इक्वल टू 60 पुट इन स्टार. तो स्टार में पुट करते हैं y इज इक्वल टू कितना आ गया 400 माइनस 5 इंटू 60. दैट मीन्स y की वैल्यू कितनी आ गई 400 माइनस 300. दैट मीन्स y इज इक्वल टू 100. इसका मतलब x भी आ गई, x की वैल्यू 60 आई थी, वो हमने इसमें स्टार इक्वेशन में पुट कर दिया तो y भी आ गया. अब x भी आ गई, y भी आ गई, तो z कैसे निकालनी है, पुट इन 1. तो x की जगह हमने क्या पुट कर देना है 60, y की जगह हमने क्या पुट कर देना है 100. तो z की वैल्यू हमारी निकल आएगी. z इज इक्वल टू 200 में से 160 माइनस करोगे तो z कितना आ गया 40 आ गया. दिस इज द वैल्यू x y z. अब देखिए सबसे पहले मैंने करा क्या कि ये सारी लिख ली और 3 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज थी. तो सबसे पहले मैंने जो टोटल मैंने कैलकुलेट कर लिया फ्रीक्वेंसी का, दोनों को मैंने टोटल को इक्वल करके रखा तो उससे मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई थी. फिर मेरे को मीडियन गिवन था, मीडियन मैंने देख लिया किस क्लास में लाई करता 30 to 40 के बीच में. तो मीडियन का फॉर्मूला लिखा, उससे मेरे को आइडिया हो गया कि आई वॉन्ट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम बना लिया. फिर मैंने देखा उसमें सारे फॉर्मूले में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम निकाल के सारा जो फॉर्मूला था लोअर लिमिट आई और एफ वो सारे निकाल के उसमें वैल्यूज पुट करी तो आई गॉट सेकंड इक्वेशन. फिर मेरे को मॉड की वैल्यू गिवन थी, मॉड इज गिवन 34. मॉड मैंने देखा किसके बीच में लाई करा, वो भी 30 और 40 रूप के बीच में लाई करा. तो मॉड का फॉर्मूला लगाया. मॉड का फॉर्मूला जब लगाया तो उससे सॉल्व करके उसमें यहाँ पर आ गया था x प्लस जेड. एक्स प्लस जेड की वैल्यू मैंने कहाँ से निकाली थी, फर्स्ट इक्वेशन से. लिखा भी था मैंने फ्रॉम 1. दैट मीन्स x प्लस जेड की वैल्यू आ जाती 200 माइनस 5. वो वहाँ पर लिख दी. तो हमारा सारा एक्सप्रेशन इसको सॉल्व करके y आ गई इन फॉर्म ऑफ x. ये वैल्यू जो स्टार थी वो मैंने पुट कर दी, पुट इन इक्वेशन नंबर 2 में जब पुट करी तो 20x का 20x 7, y की जगह क्या आ गया 400 माइनस 5x इज इक्वल टू 1900. वहां से सॉल्व करके x की वैल्यू आ जाती है. जब x की वैल्यू आ जाती है तो इस इक्वेशन में पुट करोगे तो y आ जाती है. x और y हमारे दोनों निकल गए. देन आई पुट इन इक्वेशन नंबर 1, देन इट इज विल बी द वैल्यू ऑफ z. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 3 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज व्हेन मीडियन एंड मॉड आर गिवन. हाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी. Thank you dear friends. Please like, share and subscribe my channel.